Hello everyone, in this video we are going to discuss the numerical problems related to the chapter solution. So I hope you have already studied the chapter solution so that you can understand the numerical problems related to this chapter. So let's start with the first question, that is calculate the mass of a compound. Molar mass is given, that is 256 gram per mole, to be dissolved in 75 gram of benzene. Okay, and Kf is given 5.12 and the depression in freezing point, lower its freezing point by 0.48 Kelvin. So this question is related to the depression in freezing point. So you already know the formula for depression in freezing point. So what is given to you? Depression is given, that is delta Tf. So delta Tf is given, that is equal to 0.48 Kelvin, right? What else is given? Molar mass is given, so molar mass of solute is given. So molar mass of solute is taken as M2. So M2 is given, that is equal to 256 gram per mole. So it is also given, so we can write it. What else is given to us? Mass of solvent. So solvent, that is benzene. So mass of benzene is also given, and that is equal to, we can take it, mass of benzene, that is written as W1. So W1 is equal to 75 gram, and one more thing is given, that is the value of Kf. Value of Kf is 5.12 Kelvin kg per mole. So I am writing value of Kf, that is Kf is equal to 5.12 Kelvin kg per mole. So I hope you have understood these points. So now all we have to do is to apply the formula. तो formula आपने already पढ़ा है, तो ये सारी चीजें आपको question में दी गई हैं. These all things are given in the question. So all we have to do now is to apply the formula. So let's apply the formula. Formula apply करते हैं हम. तो formula क्या कहता है? What is the formula? That is delta Tf. Delta Tf is equal to Kf, or you can say 1000 into Kf into W2 by W1 into M2. तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है. सो यू ऑलरेडी नो दीज वैल्यूज. डेल्टा TF आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.48. तो ये आपको दिया हुआ है 0.48. देन Kf इज ऑल्सो गिवन. व्हाट एल्स इज गिवन? W1 is given and M2 is given. तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में. So the value of delta Tf that was given, that is equal to 0.48 is equal to 1000 into Kf. The value of Kf is 5.12 into W2 divided by the value of W1 was given, that is 75 into M2. M2 was 256. So from here you can calculate the value of W2. W2 की वैल्यू आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. हाउ? दैट इज W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.48 इंटू 75 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 5.12. तो इसका आंसर बताइए. द आंसर विल बी इन ग्राम्स. तो इस चीज का आप ध्यान रखिए. सो प्लीज टेल मी द आंसर. What will be the answer of this? तो ये होगा इन ग्राम्स. तो ये W2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी. So I hope you have understood this question. I will tell you the answers later in the comments. The next question is 18 gram of glucose. Glucose का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, that is C6H12O6 and molar mass is also given. molar mass कितना होता है ग्लूकोज का? 180. अगर नहीं भी दिया होता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे. तो मोलर मास हमको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. मोलर मास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 180. नाउ इट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन. एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल? तो आपको ये बताना है कि किस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन बॉयल करेगा. तो हमको गिवन क्या क्या है? Kb फॉर वाटर इज गिवन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन. तो प्योर वाटर का हमको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है. तो हमको पता करना है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूट ऐड करने से, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा इसका. तो हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चेक करना होगा, कैलकुलेट करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि गिवन क्या है. व्हाट इज गिवन टू अस?
तो हमको गिवन है दैट इज मास ऑफ ग्लूकोज, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। W2 इक्वल टू, ये हमको गिवन है 18 ग्राम, सो W2 इज 18 ग्राम। व्हाट एल्स इज गिवन इन 1 kg ऑफ वाटर, तो हमको वाटर का मास भी पता है दैट इज W1, तो W1 इक्वल टू 1 kg, इसको हम ग्राम में लिख सकते हैं दैट इज 1000 ग्राम। देन व्हाट एल्स इज गिवन, आपको गिवन है Kb, Kb इज इक्वल टू, Kb आपको दिया हुआ है 0.52 फॉर वाटर, 0.52 केल्विन kg पर मोल, तो आप यूनिट भी लिख लेना केल्विन kg पर मोल। देन व्हाट एल्स इज गिवन, हमको और क्या चीज पता है, यहाँ पे हमको पता है M2, M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का यानी कि ग्लूकोज का, दैट इज इक्वल टू 180। ये अगर नहीं भी दिया होता तो हम ये कैलकुलेट कर सकते थे 180 ग्राम पर मोल, तो आप यूनिट भी साथ में लिखेंगे 180 ग्राम पर मोल। एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू इज टू अप्लाई द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। फॉर्मूला क्या कहता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा TF, ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है तो डेल्टा TB हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू KB, KB आपको पता है, KB की वैल्यू भी आपको दी हुई है 1000 इंटू KB इंटू W2 बाय M2 इंटू W1, तो ये सारी चीजें आपको पता है। देखिए KB आपको पता है, W2 आपको पता है, देन M2 आपको पता है और W1 आपको पता है, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल्टा TB की वैल्यू आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 इंटू हमारे पास KB है, तो KB की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज इक्वल टू 0.52, तो KB की हमको वैल्यू पता है दैट इज 0.52, तो इंटू हो जाएगा ये 0.52 इंटू W2 की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 18 डिवाइडेड बाय, आपको और क्या गिवन है, M2 मोलर मास वो दिया हुआ है आपको 180 एंड W1 दैट इज 1000, तो ये भी आपको ऑलरेडी पता है। 1000 से आप 1000 कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल, और 18 से 180 दैट इज 10, तो डेल्टा TB की जो वैल्यू आ रही है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0.052। लेकिन आपका क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या था कि हमको बॉइलिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB, इसका ध्यान रखेंगे। डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, दैट इज TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज TB नॉट, तो TB माइनस TB नॉट दैट इज डेल्टा TB, तो ये कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डेल्टा TB, ये डेल्टा TB के बराबर होता है। और हमको प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो लास्ट लाइन दैट इज 373.15 केल्विन, तो यहाँ पे 373.15 केल्विन आप लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB की जो वैल्यू हो जाएगी, TB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास T0B यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूट, इसको आप इस तरह शिफ्ट कर देंगे प्लस डेल्टा TB, और अब आपको वैल्यूज पता है ऑलरेडी दैट इज डेल्टा TB की जो वैल्यू है दैट इज 0.052, हमने अभी कैलकुलेट की थी 0.052, एंड प्लस हमारे पास है T0B दैट इज 373.15, तो इसका ध्यान रखेंगे 373.15 प्लस 0.052, तो दिस इज योर आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 373.202 केल्विन। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CCl3COOH, तो ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, is heated to its boiling point. The solution has the boiling point of 100.18 degrees Celsius. Determine the Van't Hoff factor for trichloroacetic acid. Right. Kb for water is given 0.512. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे मोलैलिटी गिवन है सॉल्यूशन की, राइट। देन उसके साथ साथ
हमको क्या गिवन है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है हमारे पास, और साथ में हमको गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमको गिवन है और हमको वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, तो इस वजह से हमको वेंट हॉफ फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि आपको एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीवी। द डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू केबी इंटू एम, केबी इंटू मोलैलिटी। तो लेकिन यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर दिया है तो क्या हो जाएगा, आई इंटू केबी इंटू एम। तो हमको आई ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है हमको, मोलैलिटी गिवन है एम कितना है 1, देन उसके अलावा क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ केबी दैट इज 0.512 और डेल्टा टीबी कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100.18 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज कितना हुआ है, एक्चुअल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेंगे हम, डेल्टा टीबी, तो सबसे पहले डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट बात है नहीं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू, आपको मैंने भी फॉर्मूला बताया डेल्टा टीबी का, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 100.18 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है आपके पास, वाटर, दैट इज इक्वल टू 0.18 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यू ऑफ m। तो हमको जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मोलैलिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, दैट इज m इक्वल टू, इट इज गिवन m इक्वल टू 1 मोलल, तो 1 मोलल ये आपको गिवन है। देन विद दिस kb इज ऑल्सो गिवन, तो kb की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.512, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, kg केल्विन पर मोल। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कीजिए, डेल्टा टीबी की भी, केबी की भी और एम की भी, तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा टीबी हमको गिवन था, डेल्टा टीबी कितना है हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 0.18 इज इक्वल टू आई इंटू केबी, केबी इज 0.512 इंटू एम, एम इज 1। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की वैल्यू मुझे आप बताइए आंसर में, आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू 0.512 डिवाइडेड बाय 0.18। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ आई, और इसकी यूनिट भी बताएंगे आप मुझे कि आई की यूनिट क्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आई। तो आई की आपको वैल्यू मिल चुकी है, यू कैन टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ आई, आई की आपको यूनिट भी बतानी है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.52 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला गिवन है, अगर फॉर्मूला नहीं भी गिवन होता तो आपको ऑलरेडी ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है। देन डिसॉल्व्ड इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। सो व्हाट इज गिवन टू अस, क्या क्या गिवन है हमको, सबसे पहले हमको गिवन है केबी, केबी भी गिवन है हमको, केबी इक्वल टू कितना है, दैट इज 0.52। सो केबी इज इक्वल टू 0.52, ये हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, केबी इज इक्वल टू 0.52। देन व्हाट एल्स इज गिवन, हमको और क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है द मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 0.52। तो मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज डिनोटेड बाय W2, W2 इज इक्वल टू 0.52। व्हाट एल्स इज गिवन, दैट इज M2, M2 इज द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये हमको गिवन नहीं है लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 180, राइट। यहाँ पे ग्राम है आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। नाउ व्हाट एल्स इज गिवन, और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, हमको दिया हुआ है दैट इज मास ऑफ वाटर, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज डिनोटेड बाय W1। सो W1 इज इक्वल टू 80.2, तो W1 की वैल्यू हमारे पास 80.2। सो दिस इज 80.2। नाउ अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज 80.2 ग्राम। हमको कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट हमको पता करना है, तो हम डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद टीबी की वैल्यू मिल जाएगी, टीबी इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टीबी। तो सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो डेल्टा टीबी हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 1000 इंटू
Kb की जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ इंटू Kb की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 0.52 इंटू W2 की वैल्यू दी है दैट इज ऑल्सो 0.52 राइट, डिवाइडेड बाय आपको पता है डिवाइडेड बाय M2 दैट इज इक्वल टू 180 इंटू W1, तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 80.2। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आप डेल्टा टीबी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। तो मुझे आप यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बताएंगे कमेंट्स में, और साथ ही आप मुझे बताएंगे जो टी की वैल्यू आ रही है दैट इज टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी इक्वल टू टी नॉट बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, टी नॉट बी इज 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी आप ऊपर से कैलकुलेट कर लोगे, डेल्टा टीबी और 100 प्लस डेल्टा टीबी, ये डिग्री सेल्सियस में आएगी, इसका आप ध्यान रखेंगे दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। तो आप मुझे आंसर बताइए, डेल्टा टीबी की वैल्यू भी बताइए और टीबी की वैल्यू भी बताइए। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.52 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है, एवरीथिंग एल्स इज गिवन। वहां पे डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना था, यहाँ पे डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है। व्हाट इज गिवन, देखिए क्या क्या गिवन है हमको। सबसे पहले मास गिवन है ग्लूकोज का दैट इज W2, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, गिवन क्या है W2 इक्वल टू 0.52 ग्राम। तो W2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.52 ग्राम। व्हाट एल्स इज गिवन, जो W1 है, W1 भी हमको गिवन है, W1 इक्वल टू है मास ऑफ वाटर दैट इज 80.2 ग्राम। What else is given, 80.2 ग्राम में हो गया। देन KF, वैल्यू ऑफ KF इज गिवन, वैल्यू ऑफ KF इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ KF 1.86 राइट, केल्विन पर मोलल। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ KF। एंड वन मोर थिंग दैट वी नो, गिवन नहीं है लेकिन हमको ये चीज पता है दैट इज M2, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 180, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, इस क्वेश्चन में भी हम लिख सकते हैं 180 ग्राम पर मोल। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ऑल वी हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला क्या है दैट इज डेल्टा टीएफ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीएफ इक्वल टू, मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं, आप फॉर्मूला आराम से लिखते रहना। डेल्टा टीएफ मैं बता देता हूं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है 1000 इंटू KF, यहाँ पे KB नहीं होगा, यहाँ पे KF होगा दैट इज 1.86 इंटू W2 इज गिवन दैट इज 0.52 डिवाइडेड बाय W1 दैट इज 80.2 इंटू M2 इज 180। तो आई होप you know how to solve this question. Now from here you can calculate the value of delta TF. तो tell me the value of delta TF की वैल्यू क्या आ रही है। और साथ में आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी है, इसका आप ध्यान रखेंगे दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ध्यान रखना दैट इज डेल्टा TF, याद रखना डेल्टा TF की जो वैल्यू होती है, डेल्टा TF इक्वल टू होता है T नॉट F मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस TF मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T नॉट F इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो आपको पता ही है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो T नॉट F की वैल्यू अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो 0 आएगी, और आपको TF कैलकुलेट करना है, डेल्टा TF की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मुझे आप क्या करोगे, आप मुझे बताएंगे कि वैल्यूज क्या आएंगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, क्या क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं दैट इज डेल्टा TF यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डेल्टा TF इक्वल टू, अगर आप केल्विन में कैलकुलेट करना चाहते हो तो दैट इज 273 माइनस TF। तो आपको TF कैलकुलेट करना है, डेल्टा TF आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन डेल्टा TF पर मत छोड़ा कीजिए, जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि डेल्टा TF निकाल के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अ 300 केल्विन 30 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. So osmotic pressure is given to you that is 4.98 bar and temperature is given that is 300 Kelvin and mass of glucose is given that is 30 gram, right? If the osmotic pressure of the glucose
solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो आपको पूछा गया है कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो here we have two different solution, ध्यान रखिए दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं ग्लूकोज के। पहले में 30 ग्राम ग्लूकोज है जिसको आपने 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है, तो आपको दूसरे का कंसंट्रेशन पता करना है। तो आपको कैसे कंसंट्रेशन आपको पता चलेगा? सो लेट्स सी, हमको क्या चाहिए होता है फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का। वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास CRT। तो हमको दो अलग अलग सॉल्यूशन है, तो दो अलग अलग सॉल्यूशन है तो उनके लिए वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो C जो होता है C इज मोलर कंसंट्रेशन, C इज मोलर कंसंट्रेशन, तो हमको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो दैट इज पाई 1। सो जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है उसके लिए हम 1 डिनोट करते हैं, तो पाई 1 उसका प्रेशर कितना है ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज 4.98, राइट। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, तो T1 एंड T2 बोथ आर सेम, उसको हम T ले लेंगे। देन व्हाट एल्स इज गिवन, द थिंग दैट इज गिवन इज पाई 2, द वैल्यू ऑफ पाई 2 इज इक्वल टू 1.52, राइट, बार। तो यहाँ पे बार है और 1.52 दोनों में बार ही दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हमको। द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन इज 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन फर्स्ट सॉल्यूशन, बस यही चीज आपको गिवन है। तो व्हाट एल्स इज गिवन, दैट इज W। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मोलैरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज इक्वल टू 30। क्यों? मास ऑफ ग्लूकोज बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, दैट इज 30 ग्राम एंड मोलर मास इज 180, दैट इज 1/6। तो N1 इक्वल टू 1/6। नाउ तो यहाँ से C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू N1/V1। तो N1 इज गिवन, दैट इज 1/6 अपॉन V1 इज 1 लीटर। सो C1 की वैल्यू मुझे मिल गई, दैट इज 1/6। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट C2। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज पाई 1 बाय पाई 2 इज इक्वल टू C1 इंटू R सेम है दोनों के लिए, T भी दोनों के लिए सेम है, बाय C2 इंटू R इंटू T। तो RT कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इतने सिंपली कर सकते हैं, इतने सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ हमको C1 की वैल्यू पता है, पाई 1 की वैल्यू पता है, पाई 2 की वैल्यू पता है, हमको केवल C2 कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब हम C2 कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, बहुत ही सिंपल तरीका हमारे पास है। तो पाई 1, द वैल्यू ऑफ पाई 1 वाज गिवन, दैट वाज इक्वल टू 4.98। तो हमारे पास 4.98 गिवन है, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ पाई 2 इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 1.52 इक्वल टू C1 कितना हो जाएगा हमारे पास, C1 वाज गिवन, दैट इज 1/6 अपॉन C2। तो बस हमको C2 की ही वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2 हम कैलकुलेट कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो C2 विल बी इक्वल टू, C2 को उधर लेके जाइए आप, तो C2 इज इक्वल टू 1/6 इंटू यहाँ पे 1.52 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4.98 डिवाइड हो जाएगा। इट विल बी इन मोल पर लीटर। जो हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया था C1 मोल पर लीटर में है, तो C2 भी मोल पर लीटर में ही आएगा, और यू कैन से मोलर सॉल्यूशन। सो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ C2 की वैल्यू आप मुझे बताइए कि C2 की वैल्यू यहाँ से क्या आपके पास आएगी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो C2 ही हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना था, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है जो दूसरे सॉल्यूशन का, वही हमको कैलकुलेट करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ 4% सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इज गिवन, 4% सॉल्यूशन है हमारे पास, W/W, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज का मोलर मास दिया हुआ है, M मीन्स मोलर मास ऑफ सुक्रोज, दैट इज 342 ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल में यहाँ पे मास भी दिया हुआ है इसका, मोलर मास। in water has a freezing point of this, freezing point is given, calculate the freezing point of 5% glucose in water, given freezing point of pure water is this। तो सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है, 4% W/W solution of sucrose, ये हमको गिवन है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। तो हमको यहाँ पे सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, हमको ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सो हाउ विल यू कैलकुलेट, तो हम एक काम कर लेते हैं, दोनों में हम 100
ग्राम ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं। लेट द मास ऑफ सोल्यूशन बी 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास, तो इट मीन्स जो हमारे पास वेट होगा सुक्रोज का, क्वेश्चन W2, तो वेट ऑफ सुक्रोज फर्स्ट पार्ट में जो हम कर रहे हैं W2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू 4 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा W1 इज इक्वल टू 96 ग्राम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि 4% क्या है हमारे पास सुक्रोज है और बाकी का 96% क्या होगा। तो अगर मैंने 100 लिया है तो बाकी का 96 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो W1 जो वाटर का मास होगा 96 ग्राम हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैलकुलेट KB की वैल्यू। तो डेल्टा TF, तो आपको पता है डेल्टा TF की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू T0F माइनस TF। तो हमको TF भी गिवन है, राइट। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, हमको क्या गिवन है, TF गिवन है और T0F गिवन है, दोनों हमको गिवन है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा। तो डेल्टा TF की वैल्यू दैट इज T0F गिवन है हमको, दैट इज 273.15, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, माइनस TF ही हमको गिवन है, दैट इज 271.15। तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा, क्वेश्चन में हमको यहाँ पे गिवन था 271.15। तो ये भी हम पुट कर लेते हैं, माइनस 271.15। तो माइनस ये हो जाएगा 271.15 इक्वल टू कितना होता है, तो ये इक्वल टू होता है 1000 इंटू KF इंटू W2, 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय होता है M2 इंटू W1। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या पता है, सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता है, हमको सिर्फ KF पता करना है यहाँ से, और KF की इस वैल्यू को हम नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे जब हम ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है 273 माइनस 0.15 माइनस 271.15 दैट इज 2, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 2। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2। तो W2 की वैल्यू आपको गिवन थी, दैट इज 4 बाई M2 इज द मोलर मास ऑफ सुक्रोज, ये भी गिवन था, M2 इज ऑल्सो गिवन, तो मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, दैट इज 342, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंटू W1 इज 96। तो ये हो गया आपके पास 96। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ KF। तो वैल्यू ऑफ KF आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। KF की जो वैल्यू आएगी, KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 342 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1000। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ KF। तो KF की वैल्यू आप यहां से लिख लोगे, तो इसका ध्यान रखिए, दिस इज 96 नॉट 56। नाउ तो अब हम सेकंड पार्ट के लिए जाएंगे। तो सेकंड पार्ट फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे। तो ग्लूकोज के लिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता देता हूं फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो व्हाट फॉर ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा, आपने ऑलरेडी बोला था यहाँ पे हमारे पास 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, W/W क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। उसका हमको क्या कैलकुलेट करना है, उसका हमको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमको सेम क्वेश्चन सेम तरीके से हमको करना है, सेम फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है ग्लूकोज के लिए। तो हमको क्या पता है, ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन है, तो अगेन हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज W2 इज गिवन, W2 हमारे पास है यहाँ पे, W2 इज इक्वल टू 5 ग्राम। नाउ W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर, 95 ग्राम जो बच जाएगा वो मास ऑफ वाटर हो जाएगा। देन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज M2 इज नोन, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। और हमको KF भी इस समय पता है, हमको द वैल्यू ऑफ KF इज ऑल्सो नोन, KF की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। कहाँ पता है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेट करेंगे आप। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि KF की वैल्यू क्या आएगी, और साथ में आप मुझे ये बताएंगे जो मोलैलिटी होगी, जो M2 है, M2 की वैल्यू, क्योंकि आपको M2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है ग्लूकोज के लिए, साथ में आप बताएंगे कि ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF फॉर ग्लूकोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू KF की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो आप वैल्यू KF की रख दोगे, इंटू W2 की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 5
डिवाइडेड बाय W1 भी आपको पता है दैट इज 95 इंटू M2, वो भी आपको पता है 180। तो यहाँ से आपको KF की वैल्यू देखिए, KF की वैल्यू आपको पता है, वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा TF फ्रॉम हेयर, और उसके बाद जो डेल्टा TF की वैल्यू आएगी वो आप पुट कर दोगे कहाँ पे, डेल्टा TF इज इक्वल टू, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, दैट वाज गिवन, आपको क्वेश्चन में ये गिवन था, वो कितना था, दैट वाज इक्वल टू 273.15 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो आपको कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, तो डेल्टा TF। तो आपको TF कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा TF आपको यहाँ से मिल जाएगा, KF आपको ऑलरेडी पता है, और डेल्टा TF मिल जाएगा, ये वैल्यू पुट करोगे, आपको इन दी एंड क्या कैलकुलेट करना है, TF कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वापस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the freezing point of an aqueous solution containing 10.5 gram of magnesium bromide in 200 gram of water assuming कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन आता है आपको जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि वेयर डू आई कीप आई एंड वेयर आई डोंट यूज आई, मीन्स जो वेंट हॉफ फैक्टर है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। तो जनरली जिस सब्सटेंस में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता, जैसे आपने क्वेश्चंस देखे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ग्लाइकोल, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं दे जनरली डोंट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, तो इसीलिए उनके लिए वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आपको पता है कि वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू चेंज होती है कब, अगर किसी भी सब्सटेंस में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है। एसोसिएशन होता है तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है, जो कि आपको मैंने वीडियोस में बताया था। एंड इफ देयर इज डिसोसिएशन तो वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये रेशियो होता है बेसिकली किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, और वो भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज MgBr2। सो व्हेन MgBr2 undergoes dissociation it will form Mg2 plus ion, right? It will form magnesium ion, that is Mg2 plus ion plus bromide ion 2Br minus ion। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड में आपके पास 2 ब्रोमाइड आयन और 1 मैग्नीशियम आयन फॉर्म होगा, यानी कि एक मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक पार्टिकल 1 मैग्नीशियम आयन और 2 ब्रोमाइड आयन फॉर्म करेगा, यानी कि 3 पार्टिकल्स फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब जो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये चीज समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाकी चीज हम देख लेंगे। तो वेंट हॉफ फैक्टर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय, पहले कितने थे, पहले इसका एक ही पार्टिकल था तो 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। तो वेंट हॉफ फैक्टर की जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर इज 3। यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू आएगी 3। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट कि वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 3 कैसे आएगी। नाउ बाकी की चीजें हम देख लेते हैं। तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हमको मास गिवन है, देन वाटर, मास ऑफ वाटर दैट इज W1, W2, W1 एंड M2 सब गिवन है, और KF की जो वैल्यू है वो भी हमको गिवन है। तो KF, दिस इज द वैल्यू ऑफ KF, ध्यान रखना ये KF की वैल्यू भी हमको गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज लिख लेता हूं ताकि आपको इसको इजी सॉल्व करने में इजी फील हो। तो हमको क्या क्या गिवन है, दैट इज मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड दैट इज W2। तो गिवन मास कितना है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, 10.5 ग्राम। देन व्हाट एल्स इज गिवन, दैट इज W1 मास ऑफ वाटर इज आल्सो गिवन, दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम। देन व्हाट एल्स इज गिवन, KF इज आल्सो गिवन 1.86, राइट। एंड देन व्हाट एल्स इज गिवन, एक और चीज आपको गिवन है, दैट इज M2 मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज आल्सो गिवन, दैट इज 184। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, दैट इज ग्राम पर मोल, आप जरूर लिख लीजिएगा। देन हमारे पास कैलकुलेशन ही रह जाती है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू
1000 राइट इंटू के एफ, यहाँ पे 1000 इंटू के एफ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एफ, ये आपको गिवन है तो मैं यहाँ पे के एफ की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ. तो 1000 इंटू के एफ इज 1.86 इंटू W2 इज 10.5 डिवाइडेड बाय M2 इज 184 इंटू W1 इज 200. तो आप यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लोगे. एंड वंस यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. कितना हो जाएगा 273 माइनस डेल्टा TF. तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. इसका भी आप आंसर बताएंगे मुझे, डेल्टा TF की वैल्यू भी बताएंगे एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बताएंगे. तो 273 केल्विन आप यूज़ करोगे अगर कुछ दिया नहीं है. हाँ, अगर गिवन है तो तब आप वही वैल्यू यूज़ करोगे जो गिवन है. अदरवाइज आप 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट और 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हो. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 10% solution of sucrose in water has freezing point of 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चंस. So similar questions are coming again and again. तो what is given to us? 10% solution by mass. तो by mass आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो मान लेते हैं let the mass of solution be 100 gram. तो mass of sucrose that is W2, mass of sucrose will be 10% of 100 that is 10 gram. तो हम इसको 10 gram ले लेते हैं. Then mass of solvent that is W1 remaining that is 90, right, 90 gram. Then apart from this we know M2 that is molar mass of sucrose. molar mass हमको अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में ये दिया गया है. तो M2 इक्वल टू कितना है, M2 इक्वल टू है हमारे पास दैट इज 342 ग्राम पर मोल. तो दिस इज M2. M2 की भी हमको वैल्यू दी गई है. एंड व्हाट एल्स इज गिवन, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट इज 269.15, राइट. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस. तो यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे हमको KF की वैल्यू पता करनी है. तो सबसे पहले हमको KF की वैल्यू पता करनी है और वो ग्लूकोज के लिए हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम है 10% ही है. तो डेल्टा TF, तो डेल्टा TF ध्यान रखिए, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 1000 इंटू KF नहीं पता हमको तो KF लिख लेता हूं मैं, इंटू W2 दिया हुआ आपको दैट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय आपको दिया हुआ है W1 दैट इज 90 इंटू M2 दैट इज 342. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये हम बार बार यूज कर रहे हैं फॉर्मूला. नाउ डेल्टा TF की जो वैल्यू है, डेल्टा TF इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन का और प्योर वाटर का. तो दैट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 273.5 माइनस 269.5 दैट इज इक्वल टू, ये डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू KF इंटू 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास बचा क्या 90 इंटू 342. नाउ अब इसका हम क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे KF की. तो आप पहले KF की वैल्यू बताइए मुझे कि KF की वैल्यू क्या आ रही है. देन फॉर ग्लूकोज, अब हम ग्लूकोज के लिए कैलकुलेशन करेंगे. तो देखिए यहाँ से सब कुछ आपको गिवन है, आपको सिर्फ KF की वैल्यू निकालनी है. तो KF की वैल्यू जरा मुझे बताइए और साथ में हमको वैल्यू पता करनी है फॉर ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के लिए सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए अब KF की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी. मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप भी सॉल्व करोगे. तो KF की वैल्यू आप पता करके यहाँ पे लिख लोगे, KF की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से. और ग्लूकोज के लिए अब हम सेम चीज करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपको पता है दैट इज 180 होता है. देन उसके साथ साथ 10% सॉल्यूशन था ग्लूकोज का, उसके लिए भी हमको इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है. तो हमको वही लेना है दैट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो W2 दैट इज वेट ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम. देन W1 इज गिवन टू अस, W1 इज इक्वल टू हमारे पास W1 है 90 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे भी. और अब हमको कैलकुलेट करना है क्या,
वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ? डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट इज 1000 इंटू के एफ। के एफ आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो मैं के एफ लिख लेता हूँ इंटू W2। W2 इज 10 डिवाइडेड बाय W1 दैट इज 90 इंटू M1 दैट इज 180। तो यहाँ से आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। डेल्टा टी एफ मिला, आपको क्या कैलकुलेट करना है? टी एफ कैलकुलेट करना है। तो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी नॉट वाटर जो होगा टी नॉट एफ दैट इज 273.5 केल्विन माइनस डेल्टा टी एफ। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, तो डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप टी एफ कैलकुलेट कर लोगे। तो आपको टी एफ पता करना है, ये चीज ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सब क्वेश्चन देखिए लगभग एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। हमारे पास 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है, मोलर मास भी दिया हुआ है, तो हमको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर assuming मैग्नीशियम सल्फेट अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन। कंप्लीट आयोनाइजेशन इसमें हो जाता है, या डिसोसिएशन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट जब सॉल्व करते हैं, हम डिसॉल्व करते हैं इसको मैग्नीशियम सल्फेट को, ये चीज समझना जरूरी है। तो MgSO4 क्या फॉर्म करता है? Mg2 प्लस आयन, राइट, डिसोसिएट हो रहा है, प्लस सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन। तो यानी एक मैग्नीशियम सल्फेट का पार्टिकल एक मैग्नीशियम आयन फॉर्म कर रहा है और एक सल्फेट आयन फॉर्म कर रहा है, यानी कि दो फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 2, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे मिल गई मुझे 2, तो यहाँ पे आई 2 दिया हुआ है। और क्या गिवन है हम लोगों को यहाँ पे? और हमको गिवन है यहाँ पे W2। W2 की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 4 ग्राम। M2 भी आपको यहाँ पे पता है, M2 इज द मोलर मास ऑफ, M2 भी आपको गिवन है, दैट इज 120 ग्राम पर मोल। तो मैं 120 लिख देता हूँ यहाँ पे। देन उसके अलावा क्या है? डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो और क्या चीज? 100 ग्राम ऑफ वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है, इसका मतलब आपको हमको पता है W1 भी हमको गिवन है, दैट इज 100 ग्राम। साथ ही साथ हमको क्या गिवन है? KB। उसके अलावा कुछ और गिवन है जी नहीं, बस हमको इतने की जरूरत है। KB हमको गिवन है, दैट इज 0.52 फॉर वाटर। वाटर के लिए KB आपको पता है, KB इज इक्वल टू 0.52। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो कैसे हम वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, कितने आयंस फॉर्म करता है उसका एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल, उससे आप वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो कि डिसोसिएट होकर कितने फॉर्म करता है, वही उसका क्या हो जाएगा? वेंट हॉफ फैक्टर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमको कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू 1000 इंटू केबी गिवन है। मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में करोगे तो फॉर्मूला भी लिखना। I की वैल्यू में मैं लिख लेता हूँ, दैट इज 2। I की वैल्यू कितनी है? 2, वेंट ऑफ फैक्टर 2 है, इंटू केबी इंटू क्या होता है इसके बाद? W2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W1 दैट इज 100 इंटू M2 मोलर मास कितना है इसका? 120। तो यहाँ से आपको डेल्टा टीबी मिल जाएगा। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है प्योर वाटर का? नहीं दिया हुआ है, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो या 373 केल्विन ले सकते हो। तो हमको क्या करना है? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट इज टीबी। तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज टी नॉट बी की वैल्यू 373 प्लस डेल्टा टीबी। तो बस यहाँ से आप डेल्टा टीबी आपको पता चल गया और यहाँ पे मुझे आप टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl टू बी डिसॉल्व्ड इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। तो यहाँ पे भी देखिए मैं सीधा लिख लेता हूँ वेंट हॉफ फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि NaCl फॉर्म्स 1 Na प्लस आयन एंड 1 Cl माइनस आयन, तो इसका एक पार्टिकल दो पार्टिकल डिसोसिएट होकर फॉर्म करता है, तो I इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। देन व्हाट एल्स इज गिवन? दैट इज मोलर मास दैट इज M2। तो M2 इक्वल टू कितना है? दैट इज 58.2 ग्राम पर मोल। तो दैट इज ग्राम पर मोल होगा यहाँ पे, ग्राम पर मोल। डेल्टा TF इज गिवन, डेल्टा TF इक्वल टू ये है हमारे पास
2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस. What else is given? KF. KF for water, KF is given, that is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. तो यहाँ पे ये यूनिट भी लिखी है इसकी. एंड इन दी एंड एक और चीज गिवन है हम लोगों को, दैट इज डिसॉल्व्ड इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर. सो व्हाट एल्स इज गिवन? दैट इज W1. W1 इक्वल टू है 37.2 ग्राम. So all of these things are known. अब हमको क्या करना है? We have to use direct formula. हमको क्या I है हमारे पास 2 into 1000 into is 1.86 into W2, right? W2 divided by M2. M2 is 58.2 into W1. So W1 is also given, that is 37.2. तो सब कुछ आपको गिवन है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है W2. So what will be the value of W2? मैं यहां से आपको बता देता हूं the value of W2. W2 will be equal to, इसको आप सब उधर भेज देंगे, that is 2 into 58.2 into 37.2 divided by 2 into 1000 into 1.86. So find the value of W2. It will come in grams. तो जरा आंसर बताइए. मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, आप मुझे इनके आंसर्स बताइए कि आंसर्स क्या आ रहे हैं. तो वैल्यू ऑफ W2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what mass of NaCl must be dissolved in 65 gram of water to lower the freezing point by 7.5 degrees Celsius. The freezing point depression constant for water is this and assume the Wenthoff factor is 1.87. तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है आपको. अगेन Wenthoff factor is given. सेम क्वेश्चन है हमारे पास. Wenthoff factor I इक्वल टू 1.87. मोलर मास ऑफ NaCl M2 भी गिवन है. इससे पहले हमको dissolved in 65 gram of water, that is W1. W1 is also given. W1 is equal to 65 gram. Then what else is given? That is delta TF. Delta TF is also given. Delta TF is equal to freezing point 7.5 degree Celsius. Then what else is given? KF. KF भी हमको given है. KF is equal to 1.86. मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, that is डिग्री सेल्सियस पर मोलर. नाउ assume the Wenthoff factor, ये भी given है आपको. और मोलर मास that is M2 is also given. मोलर मास ऑफ solute that is equal to M2 equal to 58.5 तो ग्राम पर मोल. नाउ तो सब कुछ आपको गिवन है यहाँ पे. ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W2. तो W2 की हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से. तो कैसे करेंगे? डेल्टा TF दैट इज 7.5 इज इक्वल टू I कितना है? 1.87 इंटू 1000. KF भी गिवन है इंटू 1.86 इंटू W2 ही पता करना है आपको, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? M2 इज 58.5 इंटू W1. तो W1 भी आपको पता है 65. सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W2. तो W2 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 58.5 इंटू 65 divided by 1.87 into 1000 into 1.86. तो ये आपको W2 की वैल्यू मिल जाएगी. सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W2 एंड इट विल कम इन ग्राम्स. तो W2 इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? यू हैव टू टेल मी इन द आंसर. तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारे पास और इसको हमने मिक्स किया है 600 ग्राम ऑफ वाटर में. तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको बताना है. तो इथाइलिन ग्लाइकोल ये भी क्या है? इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है. तो इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला पता होगा. अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको. दैट इज CH2OH और
यू कैन से CH2OH CH2OH, राइट। तो यू कैन से CH2OH होल ट्वाइस, तो CH2OH में से OH इधर आता है, तो CH2OH CH2OH। आप यहाँ से इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ से। नाउ व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब वही डेल्टा TF हमको कैलकुलेट करना है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करना है हमको, और KF की वैल्यू हमको गिवन है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे हम, तो अगर मुझे डेल्टा TF मिल गया तो TF तो मुझे ऑलरेडी मिल जाएगा। क्या करेंगे, अगर 273 में से माइनस कर देंगे डेल्टा TF को, तो बस हमको डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है दैट इज W2। तो W2 इज द मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज इक्वल टू 45 ग्राम, ये हमको गिवन है 45 ग्राम। और W1 भी गिवन है, W1 इक्वल टू 600 ग्राम, दैट इज 600 ग्राम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला मैंने आपको बताया CH2OH CH2OH, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपको पता है C12, O का होता है 16, H का होता है 1, तो 16 प्लस 12 दैट इज 28 प्लस 3 दैट इज 31, और डबल 2 बार आ रहा है इंटू 2 दैट इज 62। तो इसका मोलर मास जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 62। तो 62 इसका हो गया मोलर मास। तो M2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, M2 इज इक्वल टू 62। M2 की वैल्यू आपको दी गई है 62। व्हाट एल्स इज गिवन, द वैल्यू ऑफ KF इज आल्सो गिवन। यहाँ पे आपको वेंट हॉफ फैक्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है इसमें। तो 1.86 केल्विन kg पर मोल, यहाँ पे पर मोल आएगा, तो ये आपको वैल्यूज मिल गई। नाउ व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू KF। KF कितना है हमारे पास 1.86 इंटू W2 है हमारे पास 45 ग्राम, डिवाइडेड बाय M2 इज 62 इंटू W1 दैट इज 600। तो ये मिल जाएगा आपको डेल्टा TF की वैल्यू। और अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, TF। तो TF कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखिए TF की वैल्यू क्या होती है, TF इज इक्वल टू होता है T0F जो कि है 273 केल्विन, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम 273 ले लेंगे, माइनस डेल्टा TF। तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर बताइए मुझे, डेल्टा TF और TF की वैल्यू दोनों आप मुझे आंसर में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14। A 5% solution by mass of cane sugar is isotonic with 0.877% solution of a substance X। तो एक सब्सटेंस है, मुझे नहीं पता, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। X का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, आइसोटोनिक है 0.877% ऑफ अ सब्सटेंस X। तो मास बाय वॉल्यूम होना चाहिए यहाँ पे वैसे, तो जनरली अगर यहाँ पे दिया होता है तो हम मास बाय वॉल्यूम ही कंडीशन लेते हैं। तो देखिए आपको पता है 5% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक है, तो यानी कि जो केन शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट इज π1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X दैट इज इक्वल टू π2। तो π1 दैट इज इक्वल टू C1 इंटू RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू C2 इंटू RT, राइट। तो यहाँ पे RT हम दोनों साइड कैंसिल कर लेंगे। देन व्हाट इज गिवन, इसका 5% सॉल्यूशन है बाय मास, तो 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, तो आपको पता है दैट इज N1 बाय V1 इक्वल टू N2 बाय V2, राइट। तो V1 क्योंकि V1 V2 वॉल्यूम दोनों का हम सेम लेंगे, तो V1 V2 आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे बस हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आएंगे यहाँ पे। तो 5% सॉल्यूशन बाय मास है, तो 5% इसका मास हो जाएगा। तो 5% यानी कि 5 आप इसका मास ले लोगे, तो दैट इज 5 बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 इक्वल टू 5 इसका मास है, और मोलर मास किसका है, ये केन शुगर का। ये चीज ध्यान रखिए, किसका है ये, केन शुगर का। तो केन शुगर का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 342 इज इक्वल टू, ये आइसोटोनिक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज मास कितना है इसका 0.877, तो दैट इज इक्वल टू 0.877। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए आप 0.877 बाय इसका मोलर मास ले लेते हैं हम M2। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई 5
M2 is equal to 0.877 into 342। तो यहाँ से आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 0.877 into 342 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 59.9 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास किस में आता है? ग्राम पर मोल में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल। यूनिट सही लिखिए। तो M2 की वैल्यू, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल रखना है, दैट इज पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, पाई की वैल्यू आपको पता है CRT होती है, तो C1 इंटू RT। तो वॉल्यूम दोनों के आप इक्वल ले लीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास आप 5% जितना भी दिया हुआ 5% या 0.877% वो हम लिख लेंगे और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेज 3.9 ग्राम of benzoic acid dissolved in 49 ग्राम of benzene shows a depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate the Van Hoff factor. तो Van Hoff factor कैलकुलेट करना है एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट भी पता करना है, मतलब सॉल्यूट में एसोसिएशन हुआ है या डिसोसिएशन हुआ है। तो ये हमको तभी पता चलेगा जब वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू पता चलेगी। अगर वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा? डिसोसिएशन हुआ होगा। और अगर 1 से कम आती है तो एसोसिएशन इसमें होगा। तो बस ये पता चल जाएगा वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू से। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है? दैट इज मास ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड, दैट इज W2 इक्वल टू कितना है हमारे पास? 3.9 ग्राम। उसके अलावा सेकंड चीज क्या दी हुई हमको? बेंजीन का मास, दैट इज 49 ग्राम। तो W1 इज ऑल्सो गिवन, दैट इज इक्वल टू 49 ग्राम। द थर्ड थिंग इज गिवन, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको गिवन है, दैट इज 1.62 केल्विन। तो डेल्टा TF इज गिवन, दैट इज 1.62। देन व्हाट एल्स इज गिवन? कैलकुलेट द वेंट हॉफ फैक्टर। आपको गिवन है मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, आप कैलकुलेट कर सकते थे, दैट इज M2 इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 122 ग्राम पर मोल। तो ये 122 इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। देन व्हाट एल्स इज गिवन? KF फॉर बेंजीन। तो ये KF है, इसको नोट कर लीजिए, KF फॉर बेंजीन। तो KF इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज इक्वल टू KF इक्वल टू दिया 4.9। तो ये सारी वैल्यू हम पता कर लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। KF इज इक्वल टू 4.9 केल्विन kg पर मोल। और अब हम क्या करेंगे? हम सीधा वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? दैट इज डेल्टा TF इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, दैट इज I इंटू 1000 KF इंटू W2 बाय M2 इंटू W1। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करनी है अब और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो सारी वैल्यूज आपको दी हैं, दैट इज डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी है? 1.62, राइट, इक्वल टू I, वेंट हॉफ फैक्टर यही तो हमको पता करना है, इंटू 1000, राइट, इंटू KF आपको गिवन है, दैट इज 4.9 इंटू W2, देखिए W2 3.9 आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय M2 122 आपको गिवन है, इंटू W1 भी आपको गिवन है, W1 आपको गिवन था 49। तो 122 इंटू 49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 122 इंटू 49। बस अब आपको क्या वैल्यू पता करनी है? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 1.62 इंटू 122 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 4.9 इंटू 3.9। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो आपको नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि 1 से ज़्यादा आती है तो इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, और अगर 1 से कम आती है तो इट विल अंडरगो एसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का पता आपको I की वैल्यू से पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 gram of non-volatile solute in 200 gram of water. It has a vapor pressure of 31.84 mm of Hg
at 308 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Vapor pressure of pure water at 308 Kelvin is 32 mm of Hg. तो टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पे हमको देखना है. तो यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर वाटर का, और हमको क्या गिवन है, बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है दैट इज W2 इक्वल टू हमको गिवन है, और हमको मोलर मास कैलकुलेट करना है यानी कि M2 कैलकुलेट करना है. तो W2 इज 10 ग्राम. व्हाट एल्स इज गिवन, और क्या दिया हुआ है हमको 200 ग्राम, यानी कि W1 की वैल्यू इज 200 ग्राम. देन व्हाट एल्स इज गिवन, वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है हमें. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमको किस चीज से डिनोट करते हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, दैट इज डिनोटेड बाय P. तो P इज इक्वल टू 31.84 mm, राइट. व्हाट एल्स इज गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दैट इज 32 mm. तो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को P नॉट से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 32. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. हमको पता है वाटर यहाँ पे है, तो वी ऑल्सो नो, हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखिए हमको कैलकुलेट करना है M2 नहीं पता है हमको, एंड वी नो M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट इज प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का मोलर मास आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 18. नाउ वी विल यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला यूज करना है. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारे पास, तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, दैट इज P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 बाय M2 इंटू W1. तो ये आपको मिल जाएगा फॉर्मूला. तो ये तो आपको फॉर्मूला मिल गया, और अब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे. तो P नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P नॉट, दैट इज 32. तो ध्यान रखिए वैल्यू ऑफ P नॉट इज 32, ये आपको पता है ऑलरेडी. तो हम P नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं. तो देखिए P नॉट इक्वल टू 32, तो 32 माइनस P भी आपको गिवन है, दैट इज 31.84 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 32 इज इक्वल टू W2 इज 10 ग्राम इंटू M1 मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास M2, यही हमको पता करना है, इंटू W1 भी हमको पता है 200 ग्राम. तो ये सब हमको पता था, हमको केवल और केवल क्या पता करना है, M2 पता करना है, बस यही फॉर्मूला था. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P बाई P नॉट, या आप कह सकते हो P नॉट माइनस P बाई P नॉट, दैट इज इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज W2 इंटू M1 बाई M2 इंटू W1. तो बस ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, दैट्स इट. इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन में कुछ खास बचता नहीं है. तो 32 माइनस 38.84 दैट इज 0.16 डिवाइडेड बाई 32, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 18 बाई 200 M2. तो आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर लो, 10 लिखने की जरूरत भी नहीं है. तो M200 मतलब 20 इंटू M2 आपके पास हो जाएगा. नाउ वैल्यू आप लिखते जाइए, तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ M2. तो M2 आप इधर लिख लीजिए, तो वैल्यू ऑफ M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 20 M2 को उधर लेके जाइए, दैट इज 32 इंटू 18 डिवाइडेड बाय इधर 20 इधर आ जाएगा इंटू 0.16. तो जो भी वैल्यू आ रही है आप मुझे बताइए, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर. के भी आपको गिवन है और मोलर मास गिवन है आपको. तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड में डीकम्पोजिशन होता है CaCl2. सो हमको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा इट अंडरगोज कंप्लीट डीकम्पोजिशन. तो इट विल फॉर्म Ca2 प्लस 2Cl माइनस n. तो वेंट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ I विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो एक पार्टिकल इसका, एक पार्टिकल कैल्शियम और 2 पार्टिकल क्लोराइड आयन दे रहा. तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3. वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो गई 3. देन व्हाट एल्स इज गिवन, बाय एडिंग 10 ग्राम दैट इज W2 weight of CaCl2 that is 10 gram
Then after this what else is given? 200 gram of water, that is W1. तो W1 is also given, that is 200 gram. उसके अलावा what else is given? That is molar mass of CaCl2. तो इसको भी हम लिख लेते हैं, that is M2. M2 से डिनोट करते हैं सॉल्यूट के मोलर मास को, that is 111 ग्राम पर मोल. तो यहाँ पे ग्राम पर मोल हो जाएगा. एंड Kb की वैल्यू भी दी हुई है, Kb is equal to 0.512. दैट्स इट. तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सीधा हम डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू, आप मुझे आंसर में बताइए क्या आएगा. दैट इज आई की वैल्यू है 3 इंटू 1000 इंटू केबी कितना दिया हुआ है 0.512 इंटू W1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय M2 दैट इज 111 इंटू W1 दैट इज 200. सो प्लीज टेल मी द आंसर. डेल्टा टीबी कितना आएगा इन डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन. ध्यान रखिए डेल्टा टीबी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में, दोनों में सेम रहती है. क्वेश्चन नंबर 18 इज सम ethylene glycol is added to your car's cooling system along with 5 kg of water. If the freezing point of water glycol solution is minus 15 degree Celsius, what is the boiling point of the solution? तो solution का boiling point क्या हो जाएगा, Kb आपको गिवन है, Kf आपको गिवन है. तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा. देखो आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, कितना है -15 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब डेल्टा टीएफ डिप्रेशन कितना हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज 15. ध्यान रखिए दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस. और क्या दिया हुआ है आपको, केबी दिया हुआ है. केबी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, केबी इक्वल टू 0.52 और केएफ भी आपको दिया हुआ है, केएफ इक्वल टू 1.86. तो मैं सारी वैल्यू पुट कर लेता हूँ. केएफ इक्वल टू 1.86. तो केएफ की वैल्यू है हमारे पास 1.86. अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला. डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज केबी इंटू मोलैलिटी. आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, सिंपल फॉर्मूला, वो 1000 जो वैल्यू आती है 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1, वो M की वैल्यू होती है. उसी तरीके से डेल्टा टीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज KF इंटू मोलैलिटी. अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2 एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, या आप कह सकते हो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो डेल्टा टीबी बाय डेल्टा टीएफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी बाय डेल्टा टीएफ. तो एम कैंसिल हो जाएगा दोनों में, यू विल गेट केबी बाय केएफ. देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन हो गया. और अब सिंपली आपके पास कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में करने के लिए. हमको वैल्यू पता करनी थी डेल्टा टीबी की, तो डेल्टा टीबी हमको पता नहीं है. डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ. डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ था 15 इक्वल टू केबी. केबी की वैल्यू गिवन थी दैट इज 0.52 डिवाइडेड बाय केएफ. केएफ की वैल्यू थी 1.86. तो यहां से आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी. मैंने इसको डेल्टा टीएफ लिख लिया, आप इसको डेल्टा टीबी कर लीजिए. सो दिस इज डेल्टा टीबी. तो डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी आपको, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको गिवन थी. तो यहाँ से डेल्टा टीबी आप कैलकुलेट कर लीजिए. आंसर बताइए मुझे कमेंट में, व्हाट इज योर आंसर. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.52 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.86. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 2.5 into 10 raised power minus 2 gram of potassium sulfate in 2 liter of water at 25 degree Celsius. तो हमको osmotic pressure कैलकुलेट करना है और हमको टेम्परेचर गिवन है. याद रखिए टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में लेते हैं, T जो होता है. तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि पाई, यहाँ पे ध्यान रखिए कंप्लीटली डिसोसिएटेड है. तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आई दिया हुआ है आपको, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि जो K2SO4 होता है क्या फॉर्म करता है, 2K प्लस आयन प्लस 1 सल्फेट आयन. तो मतलब एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल इसका 3 आयन्स फॉर्म करता है. तो एक पार्टिकल से 3 पार्टिकल फॉर्म कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी. इवेंट फैक्टर इज 3. नाउ इसके बाद हमको क्या चाहिए और क्या क्या गिवन है, दैट इज मास ऑफ K2SO4 दैट इज W2 कितना है 2.5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 ग्राम, राइट.
apart from this temperature is given, that is equal to 25 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो V इक्वल टू दिया हुआ है आपको, V इक्वल टू 2 लीटर, राइट। उसके अलावा आपको गिवन है द मोलर मास ऑफ K2SO4, तो दैट इज M2, तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 174, राइट। देन और क्या गिवन है आपको, R की वैल्यू आपको लेनी है, R इक्वल टू 0.0821, ये आपको R की वैल्यू लेनी है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, राइट। तो ये आपको वैल्यूज दी गई है, आपको कुछ और वैल्यू दी गई है नहीं, तो आपको इतनी ही वैल्यूज की जरूरत भी है। तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज W2/M2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻² बाय 174, तो ये कितना हो जाता है, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देन पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू होता है दैट इज CRT, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, तो CRT इक्वल टू क्या होता है, दैट इज पाई इक्वल टू कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। देखिए अब आपको क्या क्या पता है, तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, n आपको गिवन है दैट इज 2.5 इंटू 10⁻² बाय 174 इंटू वॉल्यूम दिया था आपको 2 लीटर, इंटू R दिया हुआ आपको दैट इज 0.0821, तो यहाँ पे देखिए वेंट ऑफ फैक्टर भी आप यूज करोगे तो इंटू I से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो I से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो I कितना है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू आ जाएगा दैट इज 0.281 इंटू टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखिए दैट इज 298 केल्विन, इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे कि इसको हमको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन में इसको जरूर कन्वर्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में मत लीजिए। तो पाई की वैल्यू बताइए मुझे, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin. Find the molar mass of the solute. तो अगेन हमको सॉल्यूट का मोलर मास पता करना है, यानी कि M2 पता करना है। W2 is given to us, that is mass of solute. तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, W2 is equal to 1 gram. Then what else is given? Mass of benzene, that is mass of solvent, that is W1. W1 is equal to 50 gram. What else is given? Depression in freezing point, that is delta TF equal to 0.4 Kelvin, 0.40 Kelvin, तो डेल्टा TF की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, डेल्टा TF इक्वल टू 0.40 Kelvin, तो 0.4 Kelvin डेल्टा TF की वैल्यू भी हमको यहाँ पे दी गई है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज गिवन इज द वैल्यू ऑफ KF, तो KF इज इक्वल टू 5.12, हम सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 1000 इंटू KF की वैल्यू कितनी है 5.12, तो डेल्टा TF की वैल्यू भी मैं पुट कर लेता हूँ, दैट इज 0.4, तो यहाँ पे 0.4 आप पुट कर लोगे बाद में, इंटू W2, तो W2 गिवन है हमको 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय यहाँ पे M2 पता करना है हमको, डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, तो W1 इज 50, तो यहाँ से TF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 0.4, तो इसकी वैल्यू हम 0.4 रख देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, तो यहाँ से आप M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, M2 को उधर लेके जाएंगे, 0.4 को इधर डिवाइड कर लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 5.12 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.4, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M2। तो जरा M2 की वैल्यू भी मुझे आंसर में बताइए, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताइए, मैं बाद में आपको कमेंट्स में आंसर बता दूंगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।